Assalamu alaikum student. We already started the chapter number 7 and we were doing about the G2 phase. So we'll start from G2 phase onwards. G2 phase. As we have studied G1 phase, S phase in our last lecture. So today we are going to start from the G2 phase. Now what is G2 phase? There are many names for G2 phase like second gap phase, second growth phase or the pre-mitotic phase. So second gap phase, second growth phase or pre-mitotic phase. Now in this pre-mitotic phase, what all changes we will find in the cell, because the cell is going to go for the cell division. So here you will find in G2 phase the nucleus has increased its size, further increase in the nucleus, that is further increase in nucleus size. The nucleus has increased its size further. And then what else? Apart from this, all essential proteins required for the cell division are being synthesized. All essential proteins required for cell division is being synthesized. That means the cell is preparing itself for the cell division. Okay. Apart from this, what else? RNA synthesis also take place. It was from the starting only we studied from in the G1 phase the RNA synthesis, and which types of RNA? All three types of RNA. Here further synthesis of RNA will take place. So RNA synthesis takes place. These all things are occurring in G2 phase. In G2 phase, which is also known as gap 2 phase, also known as second growth phase or the pre-mitotic phase, in which the further increase of the size of the nucleus will take place. Apart from this, all essential proteins which are required for the DNA division, for the cell division will be synthesized. Even the RNA synthesis will take place. What else will be there, student? Then if in animal cells, अगर वो animal cells में ये cell division होने वाला है, तो centrioles will also be being formed. So in animal cell, centrioles are also formed. अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल सिंथेसिस होगा. सेंट्रियोल्स जो है 2 सेंट्रियोल्स, कितने सेंट्रियोल्स होंगे? 2 सेंट्रियोल्स विल बी आल्सो बीन फॉर्म. ये फॉर्म हो जाए और फॉर्म या फॉर्म. Remember this, in plant cell the centrioles will be absent. ये centriole characteristic है एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल जब ये क्या बोलते हैं सेल डिवीजन करता है तो उसमें सेंट्रियोल सिंथेसिस फॉर्म्ड होती हैं और ये 2 सेंट्रियोल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई. अच्छा, इसकी तरह एक और भी दिया जाता है G0 फेज. एक बात ध्यान से सुनो बेटा, G0 फेज क्या है? G0 फेज एक क्विसेंट फेज है. क्विसेंट G0 फेज इज ए क्विसेंट फेज जिसमें सेल टेम्पररी स्टॉप कर देता है डिवीजन. मतलब सेल के अंदर टेम्पररी स्टॉप हो जाता है सेल डिवीजन, और फिर कुछ दिनों के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि सेल डिवीजन होना चाहिए, नेसेसिटी है, तो सेल फिर वापस से G1 फेज में एंटर कर जाता है. तो इसका मतलब ये टेम्पररी द सेल स्टॉप डिवाइडिंग, मतलब टेम्परेरी सेल जो है वो स्टॉप कर जाता है डिवाइडिंग पे, एंड अगेन
एंटर्स G1 फेज। और जब उसको ऐसा लगता है कि सेल का डिवीजन होना चाहिए तो सेल क्या होता है, G1 फेज में वापस डिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। G0 फेज को क्विसेंट फेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज। टेम्परेरी सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग एंड इट में रिगेन और इट में अगेन एंटर्स द G1 फेज। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखेंगे कि कितने टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमारा हो गया, ये सब आप लोग देख लो स्टूडेंट। अब आपकी बुक में नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दिया है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन। Now, how many types of cell division? In our last lecture we have discussed there are 3 types of cell division. मैंने 2 बताए थे, फिर उसमें बताया था कि A माइटोसिस भी इंक्लूड किया है, तो अब उसके हिसाब से हम 3 देखेंगे। A माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन व्हिच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये 3 सेल डिवीजन के अंदर ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पहला जो है वो ए माइटोसिस है। समझ लें कि ए माइटोसिस होता क्या है। पहला ए माइटोसिस, दैट इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेल, पेरेंट सेल। unequal division of पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल में अनइक्वल डिवीजन होता है। जैसे ये मदर सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये मदर सेल है और ये डिवाइड हो रहा है। एक तरह से बाइनरी डिवीजन जैसा हो रहा है। बाइनरी डिवीजन आपको मालूम है, लेकिन उसमें इक्वल होता है, ये अनइक्वल डिवीजन है। और उसमें आप देखोगे आप देख सकते हो कि एक डॉटर सेल को ज्यादा मटेरियल मिला है डीएनए का और न्यूक्लियस बड़ा है, और एक में छोटा। तो अनइक्वल डिवीजन, जैसे 40-60 आप बोल सकते हो, तो इट इज अनइक्वल डिवीजन। ये कहां देखने को मिला है? इन द फीटल सेल। फीटल सेल या एंडोस्पर्म या फिर पैरामीशियम में ये डिवीजन, ये पैटर्न ऑफ डिवीजन जो होता है पेरेंट का, वो फॉलो किया जाता है। जैसे पैरामीशियम आपने देखा होगा, तो जिसमें अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर नहीं होता है। तो थ्रू आउट द सेल डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिस्टोर्ड। तो ड्यूरिंग एंटायर सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिस्टोर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो डिसअपियर नहीं होता। अभी हम देखेंगे, इसके बाद माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस में जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है, उसमें आप देखोगे कि इसमें डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे मदर सेल है, डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल बनाया। 2 डॉटर सेल में आप देखोगे अनइक्वल डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल गया है, 40-60 हुआ है। आप देख सकते हो ये दोनों डॉटर, इसमें मटेरियल जो है ज्यादा गया है, इसमें कम गया, दैट इज कॉल्ड ए माइटोसिस। एग्जाम्पल इसके कौन से हैं? एग्जाम्पल आर एंडोस्पर्म। आपने देखा होगा प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म इज ए रिजर्व फूड मटेरियल, जिसको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। अगर एंडोस्पर्म है वो सीड में तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। तो ये एंडोस्पर्म में देखने को मिला है, फीटल सेल में देखने को मिला है और पैरामीशियम में देखने को मिला है।
पैरामेशियम। पैरामेशियम आपने देखा होगा कि चप्पल शेप का होता है। तो दीज आर एग्जांपल्स वेयर द एमाइटोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस। अब सेकेंड है माइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट जो माइटोसिस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। माइटोसिस का जब कभी भी नाम आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा वो इक्वेशनल डिवीजन है। ये क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन वो होता है जो पेरेंट सेल के अंदर जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिमिलर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिसीव्ड बाय द डॉटर सेल। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग जो मदर सेल होते हैं ज्यादातर डिप्लॉयड होते हैं, ऑलवेज दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 2n नंबर्स। जैसे ये एक मदर सेल है और वो डिप्लॉयड है, मींस व्हाट 2n। इसका मतलब सपोज ह्यूमन बीइंग का है 46 क्रोमोसोम्स है, तो अभी ये जो सेल है ये जब डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। दिस आर द टू डॉटर सेल। और आप देखोगे कि जो दोनों जो डॉटर सेल है दोनों जो है 46 क्रोमोसोम्स दोनों के अंदर है, 2n और 2n। तो ये किसमें पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन द बॉडी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में पॉसिबल नहीं है ये डिवीजन। इसलिए रिप्रोडक्टिव सेल में जो पॉसिबल है वो मियोसिस है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन उसको कहते हैं जिसमें डॉटर जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिसीव्ड बाय 2 डॉटर सेल, उसी को बोलते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस में होता क्या है कि ये जो सेल जब डिवाइड होता है इनटू 2 इक्वल हाफ, जैसे ये 46 और ये 46 है, इसमें देखने को मिला है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं? बॉडी सेल को बोलते हैं। जर्म सेल में देखने को नहीं मिला, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल और जर्म सेल जो की है वो उसमें मियोसिस देखने को मिला है। अच्छा, अब और एक चीज देखो, ये माइटोसिस जो है उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले जब डिवीजन होता है तो उसको होता है कैरियोकाइनेसिस। बेटा ध्यान रखो, माइटोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। माइटोसिस को 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स के जरिए वो कंप्लीट होता है, और पहला कैरियोकाइनेसिस है और दूसरा क्या है? साइटोकाइनेसिस। बेटा आप कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसको फॉलो कौन करेगा? साइटोप्लाज्म करेगा, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन ऑफ द कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर डिवाइडेड है, उसमें भी कितने फेज हैं? 4 फेज हैं। जैसे कि पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और चौथा जो लास्ट फेज है उसको बोलते हैं टेलोफेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें डॉटर सेल जो होते हैं सिमिलर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम दे रिसीव एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल को क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वही डॉटर सेल को जाते हैं। जैसे 46 क्रोमोसोम है तो 46 जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो मदर सेल है वो 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और आप देख सकते हो कि सिंगल सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। और इसके अलावा जब ये डिवीजन होता है तो कैसा होता है? पहले डिवीजन जो होता है न्यूक्लियस का होता है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद उसको फॉलो जो करता है वो साइटोकाइनेसिस है। अब साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन होता है उसके बाद 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, लेकिन कैरियोकाइनेसिस जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा फेज है, जिसके अंदर 4 सब टाइप और हैं। जैसे कि पहला प्रोफेज है, सेकेंड जो है मेटाफेज है, तीसरा एनाफेज, और चौथा जो है वो टेलोफेज है। अब 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि प्रोफेज में क्या चेंजेस आता है, फिर मेटाफेज में क्या चेंजेस आता है सेल में, क्योंकि सेल डिवाइड होने वाला है। लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट।
अब हम लोग देखेंगे कि प्रोफेज में क्या डिफरेंस है। प्रोफेज, जो पहला फेज है सेल डिवीजन का वो प्रोफेज है, और प्रोफेज में दो, ये काफी लंबा फेज है, इसमें दो फेज होते हैं, अर्ली प्रोफेज और दूसरा है लेट प्रोफेज। ये पहला है और दूसरा लेट प्रोफेज। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होता है मैं तुमको समझा देता हूं। अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में जो होता है, अर्ली प्रोफेज में आप देखोगे कि सेल है, ये सेल है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में बना रहा हूं, सिमिलर प्लांट सेल भी होगा, उधर सेल वॉल होगा, तो वी विल टेक वन टिपिकल सेल, तो हम लोग एनिमल सेल लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो होगा वो होगा, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर का सेल को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर एक डार्क स्टेन बॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरी होती है, जैसे आप बोलोगे साइटोप्लाज्म है, द लिक्विड विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म एंड द लिक्विड विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर, जैसे कि पहले फेज देखेंगे तो इंटरफेज में इस तरह से होगा, इस तरह से ये होगा, जिसको हम लोग बोल देंगे क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। बाद में यही चीज जो है अर्ली, क्योंकि ये कौन सा है, अर्ली प्रोफेज में क्या हो जाएगा, इस तरह से थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर आएगा, नजर आएगा। ये अर्ली प्रोफेज है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन आगे जाके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है अर्ली प्रोफेज। ये क्या है, अर्ली प्रोफेज। अब तुम देखोगे कि लेट प्रोफेज में कैसा डायग्राम होता है। ये अर्ली प्रोफेज है, अब लेट प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियस क्या है, डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है। क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होने के बाद थिक और शॉर्ट हो गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। मतलब ये क्रोमैटिन जो है, ये क्रोमैटिन यही आगे जाके क्रोमोसोम्स बनाएगा। तो आप जरा ध्यान देना बेटा, बहुत गौर करना इस चीज को। और यहां पे आप देखोगे, यहां पे सेंट्रियोल्स है, मैं सेंट्रियोल्स यहां बना देता हूं। ये है सेंट्रियोल्स। आपको मालूम है सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। आप ये देख लो, यहां पे भी सेंट्रियोल्स होंगे। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट। ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में सेल कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरी होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड भरी होती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमैटिन नेटवर्क होगा। क्रोमैटिन का क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्रोमैटिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमैटिन आगे जाके कंडेंस होगा,
शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रियोल्स है। इसका मतलब दीज आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल। उसके बाद जो लेट प्रोफेज है, जो लेट प्रोफेज है, आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जो है इंटैक्ट है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, क्रोमोसोम शॉर्ट थिक कंडेंस होके क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमैटिन था पहले, क्रोमैटिन शॉर्ट थिक और कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। कैन यू सी दिस? एंड सेंट्रियोल्स जो है वो क्या है, दे वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स द पोल, और उन दोनों के बीच में स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ है। कैन यू सी दिस? ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैं यहां पर बता देता हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन start disappearing, then even nucleolus start disappearing, they will start disappearing, then these are called chromosomes. Now how these chromosomes are become short and thick? Because they have undergo condensation. तो chromosome condense मतलब कौन? क्रोमैटिन, 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 वेयर इज क्रोमैटिन? ये क्रोमैटिन, द क्रोमैटिन गेट कंडेंस, द क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। होप यू हैव अंडरस्टूड। क्रोमैटिन जो है, जो थ्रेड लाइक अपीयरेंस था उसका, वो कंडेंस हो गया है, कंडेंस होने के बाद वो क्रोमोसोम्स में डिस्टिंक्ट मतलब काफी ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया है, और ये आप देख सकते हो दैट इज अर्ली, मतलब ये प्रोफेज में आता है। तो व्हाट थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट इन प्रोफेज? इन प्रोफेज यू विल राइट दैट द इन प्रोफेज पहला, nuclear membrane and the nucleolus start disappearing. Nuclear membrane and nucleolus start disappearing, वो disappear होने लगते हैं। दूसरा, centrioles will move away from each other, centrioles will move away from each other, and now where they are moving? They were moving towards the opposite poles. Then chromatin get condensed into chromosomes, so that we have written chromatin condense to form chromosomes. When the centrioles moves away from each other, they form the spindle formation. Spindle formation take place. Spindle fiber formation takes place. मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो these are all changes which you will find in early prophase and late prophase. तो prophase जो है वो क्या क्या दिया है आपके बुक में? Nuclear membrane and nucleolus start disappearing, what we have written there. Nuclear then centrioles start moving away from each other towards the opposite pole, that also we have studied there. The chromatin network material, the chromatin material which we call as a thread-like structure, they start to condense and to form the short and thick chromosomes. Now we'll go to the metaphase. Now what is metaphase now? Let's start now. Metaphase क्या है? metaphase.
बेटा जब कभी भी हम मेटाफेज बोलते हैं तो मेटाफेज मतलब इक्वेटर, मतलब क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेंगे इक्वेटर की तरफ। जैसे कि ये डायग्राम देखो बेटा, ये है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज ए सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया और ये है सेंट्रियोल्स। ये क्या है? सेंट्रियोल्स है। किसमें प्रेजेंट है? एनिमल सेल में। किसमें एब्सेंट है? प्लांट सेल में। और ये है इक्वेटर, इस इक्वेटर के पास क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है। कैन यू सी दिस? ये है मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट फेज इन विच द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन। क्रोमोसोम्स को अगर देखना है तो मेटाफेज सबसे अच्छा फेज माना जाता है क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये मेटाफेज मतलब क्या? इक्वेटर, इक्वेटर पे आ जाना। अगर ये ग्लोब है तो इसका बीच का जो है इक्वेटर है। आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स जो हैं उन्होंने अपने आप को, दीज आर व्हाट? क्रोमोसोम्स, जो कि फर्दर कंडेंस होने के बाद थिक एंड शॉर्ट हो चुके हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। मतलब ये क्रोमोसोम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं किसमें? मेटाफेज में। द क्रोमोसोम्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। कैसे हो गया? कंडेंस होने की वजह से। फर्दर कंडेंस हुए, शॉर्ट भी हो गए, थिक भी हो गए, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये मेटाफेज में क्रोमोसोम्स ने अपने आप को कहां अरेंज किया है? इक्वेटर में। और सेंट्रोमियर, जैसे अभी मैं ये बता देता हूं कि जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम्स हैं तो क्रोमोसोम्स का ये जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। ये सिस्टर क्रोमैटिड है। बेटा याद रखना, ये क्रोमोसोम्स के पार्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। अगर ये क्रोमोसोम्स हैं जिसको 2 आर्म्स हैं और ये 2 आर्म्स क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स के हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड। अगर ये क्रोमोसोम्स का आर्म और ये क्रोमोसोम्स का आर्म लूंगा तो इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो दीज 2 आर्म्स आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और ये दोनों आर्म जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड हैं। अच्छा, ये है स्पिंडल फाइबर। कैन यू सी दिस? ये इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये जो है सेंट्रियोल्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को कहां अटैच करके रखा है? सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर में उसने अटैच करके रखा है। ये इसको बोलते हैं मेटाफेज। अब ये मेटाफेज का मैंने बता दिया, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेन। अब मेटाफेज में लिखना क्या है? मेटाफेज में आपको लिखना है ऑल द क्रोमोसोम्स arrange themselves at equatorial plane। सभी क्रोमोसोम्स ने अपने आप को कहां अरेंज किया है? एट द इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज किया है। ये पहला है। दूसरा, क्रोमोसोम्स बिकम द क्रोमोसोम्स become more condensed into short and thick chromosomes। इसका मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो फर्दर कंडेंस हुआ है, शॉर्ट भी हुआ है, थिक भी हुआ है और बहुत प्रोमिनेंट क्रोमोसोम्स बन चुका है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर एट सेंट्रोमियर। और chromosomes are attached to spindle fiber। स्पिंडल फाइबर कहां से आ रही है? स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से रेडिएट हो रही है।
तो स्पिंडल फाइबर्स जो है सेंट्रियोल से रेडिएट होने के बाद क्रोमोसोम्स को अटैच कर रही हैं, और कहां पे कर रही हैं, यहां कर रही है। कैन यू सी दिस? इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर थ्रू सेंट्रोमियर। समझ में आ गया? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो कहां अरेंज हुआ है, मेटाफेज में इट इज अरेंज टू द इक्वेटोरियल प्लेन, और यहां अरेंज होने के बाद उनको किसने हेल्ड किया है, स्पिंडल फाइबर में। कहां से हेल्ड किया है, सेंट्रोमियर के जरिए, और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कहां से रेडिएट हो रही है, फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। इसका मतलब सेंट्रियोल्स कंप्लीट अपोजिट पोल पे पहुंच गया है, दे हैव मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, फ्रॉम देयर दे हैव रेडिएटेड द स्पिंडल फाइबर एंड द स्पिंडल फाइबर हैज अटैच्ड द क्रोमोसोम्स एट द पॉइंट नोन एज सेंट्रोमियर। These all things are there in the metaphase. Now next time we will start with anaphase. Thank you, students.